Chapter 5, Arithmetic Progression. This is Rupa Guha and we are doing the concept of this chapter. This chapter is contributing almost 5 to 6 marks in your final board examination. In this year's sample question paper, we have, I think, 6 marks from this chapter. So let's see the first concept, that is arithmetic progression. Now, an arithmetic progression, commonly known as AP, is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number D to the preceding term except the first term. So this fixed number D is called the common difference. And if we want to know the general form of an AP, how do you get an AP? A, then A plus D, then A plus 2D, then A plus 3D, like that, right? So easily understood the concept of this, कि we are adding D to each term to get the next term. Okay. So let's see and the formula for the nth term of an AP. So the nth term, which is already also called general term of an AP, is given by an equals to a plus n minus 1 into d. Now what is a? A is the first term and d is the common difference. Now let me give you one example. If I want to find n equals to 6. So A6 will be equals to A plus 6 minus 1, that is 5D. So I need to put the value of A and D, I'll get the sixth term of this AP, right? So that way, but one thing which you should always remember, that n is always a natural number. It can't be negative, it can't be in fractions. So let me take an example and we'll understand the concept little better, right? So we need to find the next term of an AP, and the AP is root 6, root 60, root 24, root 54, and 4 options are there with us. This is a 1 marker question from 2023. Now, इस AP में हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म क्या है, रूट 6 है. बट हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, दैट इज रूट 24. I can always take common things, right? So what I did, I factorized it. Second term was root 24. I factorized and I got 2 root 6. 2 कॉमन निकल के 2 into 2 into 2 into 3 से 2 मेरा 2 root 6 आ गया. Now similarly I'll take the third term, which is root 54. I'll factorize it and I get 3 root 6. So D की वैल्यू कैसे आएगा? या तो A2 माइनस A करेंगे या A3 माइनस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने से D की वैल्यू आ जाती है. सो 2 रूट 6 से रूट 6 को सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट रूट 6. नाउ द फोर्थ टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थर्ड टर्म में D को ऐड कर दूंगी. सो थर्ड टर्म वाज 3 रूट 6. So I added root 6 with that and I got 4 root 6. But 4 root 6 was not an option. In 4 options it was not there. So क्या किया? 4 को root के अंदर लेके आ गई. So 4 into 4 into 6, I got the answer as root 96. That is option B is the correct option for this. Now the next example. Which term of the AP? The AP is minus 29, minus 26, minus 23 is 16. And 4 options are there with us. This is a 1 marker question from 2024. So again same concept लगाएंगे. A की value minus 29 हो गया. Now when you are finding out D, you have to be little precautious because negative है. So क्या किया? minus 26 में से minus 29 को subtract किया. So make sure that you don't do this mistake, which is commonly done. So the answer will be 3. Okay. Now nth term की वैल्यू दे रखी है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है. nth term is 16. राइट. सो क्या किया? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है, उसमें सारे वैल्यूज है एन के अलावा, तो सारे वैल्यूज डाल दिए. ए एन की जगह 16, ए की जगह माइनस 29, डी की जगह 3. माइनस 29 को उस तरफ लेकर गए तो 16 प्लस 29 हो गया, विच इज 45. फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 15 आ गया. सो एन की वैल्यू आ गई 16. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके. नाउ I have taken one more example from this concept only because इसमें AP में formulas limited है, but अलग अलग तरह के questions आते हैं. So here we need to find the common difference of an AP in which A15 and A11 का subtraction करा तो 48 आया, means 15th term
और 11th टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो 48 आया. 4 ऑप्शंस आर देयर विद अस. दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2024. सो A15 और A11 दोनों की जगह AN वाले फॉर्मूले को पुट कर देंगे. A15 की जगह आप क्या लिखोगे? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी. और A11 की जगह क्या लिखोगे? A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. सो आई लैंडेड विथ A प्लस 14D minus A plus 10D. Make sure that you are putting brackets because there is a negative sign between them. So when you open the brackets, A and A cancel out each other. 14D minus 10D will be 4D. The answer is 48. So D is 12. So the correct option is option A. So students, we have seen this concept. Now I am going to the next one. Sum of n terms of an AP. Okay, now we have seen that nth term कैसे निकालते हैं. अब हम sum of n terms which is represented by Sn की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. So the formula is Sn is given by n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d, where n is the total number of terms of the AP. या फिर ज़रूरी नहीं है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो. यदि मुझे 6 निकालना है, मतलब 6 टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या करूंगी? n की वैल्यू 6 ले लूंगी. सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आई कैन चेंज दिस थिंग. a एज यू नो इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. नाउ इसी फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जा सकता है. कैसे? Sn की वैल्यू मुझे निकालनी है और मेरे पास लास्ट टर्म या nth टर्म की वैल्यू दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखा है और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है. सो उसके लिए मेरे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल एंड आई विल गिव यू, आई विल शो यू हाउ टू यूज़ दिस. सो Sn की वैल्यू क्या हो गई? n बाई 2 a ब्रैकेट में a प्लस an. क्या किया हमने? ऊपर वाले फॉर्मूले 2a को क्या कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. a प्लस a, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी? an थी. सो आई लैंडेड विथ दिस फॉर्मूला. ओके, सो Sn का दोनों फॉर्मूलेज हमने देख लिए. सो ऑब्वियसली इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी गेट टू नो कि कौन सा वाला फॉर्मूला हमें कहाँ यूज करना है. Okay, so we first example says that how many terms of the arithmetic progression 45, 39, 33 must be taken so that their sum is 180. So sum is given, AP is given. हमें डबल आंसर, मतलब इसका आंसर 2 आएगा, हमें एक्सप्लेन करना है उसको. सो लेट्स सी कि कैसे करें. इट इज़ अ 5 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2023. सो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म हमें पता है 45. ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 45. डी इज 39 माइनस 45 माइनस 6. Sn हो गया 180. ये चीज़ें तो हमें दे रखा है, बस हमें Sn वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला? वो वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें n है. n की वैल्यू मुझे निकालनी है, a और d पता है. सो आई यूज दैट फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1. I have simply put the values and I'm solving it, right? So what I got, सॉल्व करने के बाद 180 इक्वल्स टू n by 2 इंटू 90 माइनस 6n प्लस 6. 90 और 6 को ऐड कर दिया तो 96 माइनस 6n हो गया. अब वाइज थिंग टू डू इज दैट 2 कॉमन निकाल लीजिए अंदर से. तो जो n by 2 का 2 है और वो वाला 2 कट जाएगा. सो 48 माइनस 3n बचा. n को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 180 इज इक्वल्स टू 48n माइनस 3n स्क्वायर. सो इसको रिशफल करके प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ गए. 3n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 180. कभी भी, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, कभी भी किसी भी इक्वेशन को आप सिंपलर फॉर्म में लेके आ सकते हैं. सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट. सो इसको क्या किया? 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60. 10 और 6 के फैक्टर्स निकले. देखिए 2 आंसर्स निकले, राइट? 2 आंसर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मैंने कैसे किया है. द डबल आंसर ऑकर्स बिकॉज द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 7th to 10, मतलब एक आंसर 10 आया, एक आंसर 6 आया, तो इसमें 10 टर्म्स के सम का भी सेम 180 आ रहा और 6 टर्म्स के सम का भी सेम 180 आ रहा. मतलब 7 से लेकर 9th टर्म तक जितने भी नंबर्स थे वो क्या हो रहा है? एडअप होके 0 हो जा रहा. 7 से 10 टर्म तक रादर. सो एडअप होके 0 हो जा रहा. सो जो आंसर 6 में आया वही 10th में आया. सो दैट इज वाई वी गॉट
n की वैल्यू फॉर द सेम 180 आंसर. Okay, students, got the concept, got understood this, because this is a 5 marker question and you get to see usually that AP 5 markers में आता है. Fine. So a big chunk of marks is there. So you should be very confident about these type of questions. Okay. So let me take one more example, and yes, from the same concept, that is sum wala. If the sum of the first 6 terms of the AP is 36 and that of the first 16 terms is 256, find the sum of the first 10 terms. This is a 5-marker question from 2023. So S6 की वैल्यू दे रखी है 36, तो फटाफट फॉर्मूले में डाल दिया. क्या किया? 6/2 2a plus 6 minus 1 into d equals to 36. 6/2 की जगह 3 आ गया, सो 2a plus 5d, और 3 को इस तरफ लेके 36 से डिवाइड कर दिया तो 12 आ गया. तो पहला इक्वेशन क्या आया? 2a plus 5d equals to 12. नाउ दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें हमारे यहाँ पे? दैट इज S16 equals to 256. So I have simply used that earlier formula and n की जगह 16 डाल दिया. So equation क्या बन गया? 16/2 2a plus 16 minus 1 into d equals to 256. 8 आया डिवाइड करके, 8 को इस तरफ लेकर चले गए. So 256 को 8 से डिवाइड करके 32 आया. So I got the answer 2a plus 15d equals to 32. आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि एपी में हम क्वाड्रेटिक भी यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 इक्वेशंस आ गए. सो आई विल बी यूजिंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट. सो इसमें हर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हमारे लग रहे हैं. सो अब ने क्या किया? इक्वेशन 2 को पहला लिखा और इक्वेशन 1 को बाद में लिखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 10d आया, एंड 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया, 20 आया. डी की वैल्यू 2 आ गई. सो इस वैल्यू को एक इक्वेशन में डाल दिया. डी की कौन सा इक्वेशन लिया? पहला वाला, दैट इज 2a plus 5d equals to 12. सो सॉल्व करके a की वैल्यू 1 आ गई. अब हमें क्या करना है? a भी आ गया, d भी आ गया. अब S10 निकालना है. उसमें भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे. 10/2 2a plus 10 minus 1 into d. So 5 equals 5 into 2a plus 9d आया. a और d की वैल्यू फाइनली पुट करके फाइनल आंसर क्या आ गया? 100 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए इस चैप्टर में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फॉर्मूलेज बहुत लिमिटेड है, बस आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है और लगाना आना चाहिए. दैट इज़ so I could nail my 5 markers question that way. I have taken one more example so that I can use the other SN वाला formula भी मैं use कर सकूँ. इसलिए मैंने दूसरा एक example लिया, and I'll show you when and where I should use that SN वाला formula. Now this question says that find the sum of all the integers between 50 and 500 which are divisible by 7. This is 3-marker question from 2024. So I need to find all the numbers between 50 and 500. So I need to find an AP basically which are divisible by 7. तो सबसे पहला नंबर हमारे दिमाग में क्या आता? 7 8 56, राइट. उसके बाद आप 7 ऐड करते जाइए और लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दीजिए 500 को, और जो रिमाइंडर निकलेगा उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है. सो कैसे आया? 56 63 70 एंड द लास्ट नंबर इज 497. सो स्टूडेंट्स, पहला नंबर मिल गया, a इक्वल्स टू 56. डी आपको दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 7 आएगा, एंड an इज 496. नाउ आई नीड टू नो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. सो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? an वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रेस्पेक्टिव वैल्यूज डाल के n की वैल्यू निकाल ली. अच्छा, सो n की वैल्यू आ गई 64. अब यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया. SN में मुझे n की वैल्यू मिल गई, मेरे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है एंड an इज ऑलरेडी देयर. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट बिगर वन आई हैव यूज्ड द स्मॉलर फॉर्मूला, that is n/2 a plus an. So 64/2 56 plus 497. I got the final answer after multiplying 17696. Okay students, so you got to understand where I need to use this formula. मैं वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकती थी, बट यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ा सिंपलर और ईजियर हो गया. So I can use this formula. Otherwise, if you feel that a little confused, you can always go ahead with the first formula as well.
Okay, so let's get with the last thing. That is, if three consecutive terms of an AP are given to us, we can find or establish a relation between them. So A, B, C are three consecutive terms of an AP. So the relation is 2B equals to A plus C, or I can also write B equals to A plus C by 2, where B is also called the arithmetic mean of A and C. और इसमें से ना एक वन मार्कर ही आता है, यूजुअली वन मार्कर ही आता है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में लिया है. इसमें से आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखे, राइट. So if x, 2x plus 9 and 4x plus 3 are three consecutive terms of an AP, then we need to find the value of x. Four options are there with us. This is the one marker from 2023. So three consecutive terms दे रखा है, तो first और last को add करके बीच वाले को twice से multiply करके equate कर देंगे. So we'll be doing the same thing here. So x plus 4x plus 3 करेंगे और 2 इंटू 2x प्लस 9 कर देंगे. इक्वेशन बन गई. अब आपको सॉल्व करना है सिंपली, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वैल्यू ऑफ x हमें क्या मिला? 15. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स, हमने सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के देख लिए. वेरी स्कोरिंग है, 6 नंबर आ रहा है आपका, एंड आई थिंक वी हैव done all sort of problems. I'll come with more important problems, more important questions in my next video from the same chapter. So if you like my video, please share and subscribe. That is all for today. See you with my next video. Bye bye for